ویلکم بیک. کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبری، اگلے 2 سال بین الاقوامی کرکٹ اپنے پسندیدہ چینل پر دیکھیں گے. ARY کمیونیکیشنز اور ٹاور سپورٹس کنسورشیم کی مشترکہ کامیابی 2024 سے 26 تک کی PCB 2 طرفہ اور سہ ملکی سیریز کے نشریاتی حقوق حاصل کر لیے. کرکٹ شائقین اگلے 2 سال پاکستان میں تمام بین الاقوامی کرکٹ سے اسپورٹس اور 10 سپورٹس پر لطف اندوز ہوں گے. ARY کمیونیکیشنز کا پاکستان کرکٹ کے فروغ کے لیے یہ ایک اور بڑا قدم ہے. ان 2 سالوں میں شائقین بنگلہ دیش، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی. آئندہ سال فروری میں 3 ملکی ون ڈے سیریز میں پاکستان کے ساتھ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں بھی ہوں گی. یہ سیریز بھی اسپورٹس اور 10 سپورٹس پر دیکھنے کو ملے گی. خبر یہ ہے کہ سابق DGI فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسروں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے. ISPR کا کہنا ہے ان ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے گرفتار تینوں افسر فیض حمید کے خاص اور منظور نظر تھے. ڈسپلن کی خلاف ورزی کا الزام، 3 مزید سابق فوجی افسر گرفتار. ISPR نے بتایا تینوں افسروں کو سابق DGI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں ملٹری تحویل میں لیا گیا. ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کچھ دوسرے ریٹائرڈ فوجی افسروں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سیاسی مفادات رکھنے، عدم استحکام پیدا کرنے کے الزام میں تحقیقات جاری ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملٹری تحویل میں لیے گئے افسروں میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل ہیں. گرفتار دونوں بریگیڈیئرز کا تعلق چکوال سے ہے. تینوں ریٹائرڈ افسر پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں بھی شامل رہے. ISPR کی پریس ریلیز کے بعد یہ بات واضح ہے کہ فیض حمید کے ساتھ ریٹائرڈ افسروں کا ایک گروپ سیاسی جماعت سے پیغام رسانی اور سہولت کاری کر رہا تھا. فوج کے قواعد و ضوابط بڑے واضح اور سخت ہیں، اس لیے پاک فوج اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر احتساب کے عمل کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی. 12 اگست کو سابق ISI سربراہ فیض حمید کو فوجی تحویل میں دیا گیا تھا. ISPR کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے کئی واقعات سامنے آئے. ٹاپ سٹی کیس میں بھی شکایات موصول ہوئی تھیں. فیض حمید سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے. بانی PTI نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا فوج داخلی احتساب کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے. فیض حمید کا 9 مئی سے تعلق ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سارے ثبوت سامنے لائے جائیں. بانی PTI نے کہا انہوں نے اپنے دور حکومت میں فیض حمید کو بطور DGI نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا. انہیں عہدے سے ہٹانے پر میری قمر جاوید باجوہ سے تلخی ہوئی تھی. فیض حمید کے خلاف ادارہ خود کارروائی کرے گا. DGI تو خود اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا. آرمی چیف کا مرہون منت ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اس وقت جنرل باجوہ سپہ سالار تھے. جو کچھ فیض حمید نے کیا اس پر جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کمانڈ کے نیچے یہ سب کیسے ہوا. فیض حمید صاحب کے حوالے سے آرمی ایکٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اپنا رستہ خود اختیار کرے گا. DGI اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا. محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے. اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. جو چیزیں بھی ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی. خواجہ آصف کو کوئی GHQ کے قریب پھڑکنے نہیں دیتا ہے. جنرل باجوہ نے ملازمت میں توسیع کے لیے لین دین کی. انہوں نے کہا فیض حمید کا نام ڈراپ کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنی چوائس سے پیچھے ہٹ جائیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، نجی TV چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جنرل باجوہ کی بات نہیں مانی گئی تو دھمکیاں دی. آخری دنوں میں مجھ سے اور ملک محمد احمد خان سے 5 گھنٹے گفتگو ہوئی. صاحب کا رخصتی کا وقت آیا. آئی تھنک ہی ایکسپیکٹ آئی شوڈ کنٹینیو. گفتگو کی 9, 10, 12 دن جو ہے اس میں یہ انڈیکیشن جو ہے مجھے ملتی رہی. ہم چاہتے تھے نمبر 1 پہ جو نام ہے اس کو کر دیا لیکن ہی کیپٹ آن انسسٹنگ. انہوں نے کہا مجھے میں فیض کو ڈراپ کر رہا ہوں تو آپ بھی جو ہے نا اپنی چوائس ڈراپ. میاں صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کانٹیکٹ کیا، میں وہاں پہ اپنی بات منوا. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے انہوں نے ڈفرنٹ قسم کی آپشنز مور لائک
19th और 20th of November. इन्होंने ड्रॉप कर दिया नाम का कि फैज साहब का मैं नहीं परसू कर रहा, साढ़े तो सांच रहा था कि ये नेगोशिएशन जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, बातचीत, ये क्यों स्ट्रक्चर्ड थी? नहीं, डायरेक्ट अपना वसी तो गल्ला करने. I used to travel on helicopter and go to army house. स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद जा रहे हैं, शामी उसे पहुंच जाना है, आके मियां शहबाज शरीफ को रिपोर्ट देनी. स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर दिफा का बयान मुस्तरद कर दिया. मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, कमर जावेद बाजवा ने खुद कहा था कि एक्सटेंशन नहीं ले रहा, मेरे पीछे दीगर अफसरान का भी हक है. ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं उस वक्त फैज हमीद की कोर कमांडर तैनाती का मामला चल रहा था. मुनासिब होता है कि ख्वाजा साहब इन 3 बातों को भी मद्देनजर रखें. बाजवा का एक सितंबर, जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा. मेरी उनसे एक जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया, जिससे उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन अंडर 2 सर्कमस्टेंसेज जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, और मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मजीद किसी ऐसी बात करूँ. बाजवा की स्टेटेड पोजीशन थी जो पब्लिक है. जब फैज डीजी आए थे, ये इमरान खान साहब की उनकी बतौर कोर कमांडर की अपॉइंटमेंट से पहले ये एक पैनल ऑफ नेम्स डीजीआई के लिए आने की बात की बहस चली जो पब्लिक, तो गालिबन शायद उस वक्त का रेफरेंस खान साहब दे रहे हैं. बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी पर साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया. जराये ने बताया जेल के मजीद 2 अफसरों से पूछताछ शुरू कर दी गई है. इन अफसरों में अडयाला जेल के असिस्टेंट नाजिम और साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जफर भी शामिल हैं. दोनों अफसर साबिक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे. अडयाला जेल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ की गई. डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछताछ की जाएगी. मोहम्मद अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्डर और हेड वार्डर से पूछताछ होगी. तमाम मुलाजिम मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं. 3 यूरोपीय मुल्कों के नंबरों पर व्हाट्सएप के शवाहिद भी मिल चुके हैं. मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है. वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए. मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया, अब आवाम को डिफॉल्ट होने से बचाना है. मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं. पीटीआई की तबाही मुल्क में महंगाई और महंगे बिजली के बिल लाई. आवाम हमसे रिलीफ की तवक्को करते हैं. हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है. मुश्किल तरीन हालात में भी रिलीफ कैसे देना है. दिवालिया से बचाना मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है. नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खद्दुखाल से आगाह किया. महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया. पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर खंडर बनता जा रहा है. कराची की सड़कें मानसून बारिशों के 2 स्पेल भी न सह सकीं. मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जगह जगह गड्ढों से तबाह हो रही हैं, तो पैदल चलने वालों के लिए भी सीवरेज का पानी अजाब बन चुका है. अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल है. अस्पतालों और स्कूलों के नजदीक ताफुन बीमारियां फैला रहा है. आइए अपने रिपोर्टर्स के साथ सैर करते हैं कराची नहीं खंडराची की. देखिए, मैं इस वक्त नाजमाबाद 7 नंबर को पापोश नगर से मिलाने वाली सड़क पर सफर कर रहा हूं. ये इंतहाई अहम सड़क है जिस पर दोनों जानिब से ट्रैफिक चलता है और इसी सड़क पर अब्बासी शहीद अस्पताल भी वाक़ है. हालिया बारिशों के बाद इस सड़क पर जो है वो कई मुकामात पर गड्ढे पड़े हुए हैं. सड़क इंतहाई खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार है. यहाँ पर चलने वाली गाड़ियां डानाडोल होकर चलती हैं. वो एम्बुलेंसेस जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल मरीजों को लेकर आ रही हैं, उन्हें बहुत दुश्वारी रहती है. जो मकीन है उनका कहना है कि सड़क पर जगह जगह गंदगी और गलाजत है. उन्हें न सिर्फ गाड़ियों के जरिए पैदल सफर करने में भी बहुत मुश्किलात का सामना रहता है. लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया है मुरम्मत का काम जल्द अज जल्द किया जाए, इसकी तामीरें नो की जाए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो कम हो सकें और उन्हें रिलीफ मिल सके. जी, इस वक्त हम सिविल अस्पताल के बिल्कुल सामने गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कोतवाल बिल्डिंग जो कैंपस स्कूल के ऊपर खड़े हुए हैं और मेरे पस मंजर के अंदर आप देख रहे हैं कि सीरीज का गंदा पानी इस स्कूल के मरकजी गेट के ऊपर मौजूद है. सिविल अस्पताल का जो वेयर हाउस है वहाँ से निकलने वाली जो सीरीज की लाइन है वो ओवरफ्लो का शिकार हो चुकी है.
मुतअद्दिद मरतबा DMC समेत मुताल्लिका यूनियन काउंसिल को सूरत-ए-हाल से स्कूल इंतजामिया ने आगाह किया, ताहम उसके बावजूद सूरत-ए-हाल का ताहाल नोटिस नहीं लिया गया है। कैसे हमारे बच्चे आएंगे, वो उनके तो कपड़े खराब हो जाएंगे, पेरेंट्स आएंगे। सर हमारे स्कूल की इतनी बड़ी मुश्किलात है कि हमारे स्कूल के छोटे मासूम बच्चे जो आते हैं, KG के बच्चे, उन्हें रोड पार करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। असातिज़ा ने मुतअद्दिद मरतबा शिकायत के बावजूद मुज़र इंतजामिया की जानिब से सूरत-ए-हाल का नोटिस नहीं लिया गया। तो इस वक्त इस निकासी आपके संगीन मसले की वजह से कोतवाल स्कूल के तलबा व तालिबात असातिज़ा संगीन मुश्किलात का शिकार हैं। जी, कराची की यूनिवर्सिटी रोड पे हम मौजूद हैं। शहर की अहम तरीन शाहराहों में से एक है। नीपा चौरंगी पर पड़ने वाले गड़े देखकर यकीन नहीं आता कि ये मुख्तलिफ तालीमी इदारों को कनेक्ट करती है और यही रोड आगे नेशनल स्टेडियम, एक्सपो सेंटर तक जाती है। गाड़ियों का गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। धूल, मट्टी, गर्दो गुबार एक तरफ और उसके बाद बड़े बड़े गड्ढों में गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चल पाती हैं। गाड़ियाँ यहाँ चलते चलते टूट फूट का शिकार होती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं। सफारी पार्क के सामने आने जाने वाले जो दोनों ट्रैक हैं यूनिवर्सिटी रोड के, वो भी इसी तरह से टूट फूट का शिकार हैं और वहाँ पर सीवरेज की लाइन चौक हो जाती है और पानी भी जमा रहता है। स्टॉप पे खड़े हुए जो आम अफराद होते हैं गाड़ियों के इंतज़ार में या बाइक्स पे गुजर रहे होते हैं, उन्हें भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस गर्दो गुबार की वजह से बराह रास्त असरात पड़ते हैं और वो कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल जेल से मुत्तसिल सड़क जो कि PIB कॉलोनी की तरफ जाती है और सड़क की हालत जो है वो अबतर हो गई है। सड़क पर जो है वो जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और पैदल चलने वालों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ जो है वो सोसाइटी भी है, सेंट्रल जेल भी है और जो है वो स्कूल और हॉस्पिटल्स भी यहाँ मौजूद हैं। सड़क खस्ता हाली का शिकार हो गई है। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मुरम्मत हर बार करवाई जाती है लेकिन सही मटेरियल ना होने की वजह से जो है वो सड़क बार बार धंस जाती है और बारिशों का भी मौसम है। इसी वजह से जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सड़क जो है वो ज़ेरियाब भी आ जाती है और जो गड्ढे हैं उनकी वजह से जो है वो सड़कों पर पानी भी जमा हो जाता है। जी, कराची की सड़कों को बारिशों ने उधेड़ कर रख दिया है। तबाहाल सड़कें शहरियों की बाइक्स और गाड़ियां भी खराब कर रही हैं, जिनको बार बार ठीक करवाना गरीब आवाम के बस से बाहर है। ऐसी ही सूरत हाल से दो चार एक डिलीवरी बॉय की कहानी सुना रहे हैं फारूक समी। अपनी खराब मोटरसाइकिल सही करा था ये नौजवान 27 साल जवाद कुमरानी है, जो कि पेशे के एतबार से एक डिलीवरी बॉय है। बारिश से मुतासर सड़कों ने इसकी बाइक का चेन स्पॉकेट खराब कर दिया है। जहाँ पे खड्डा आता है बाइक रोकते हैं, फिर दूसरा खड्डा आ जाता है तो बाइक की मेंटेनेंस भी रखते हैं। मेंटेनेंस रखने के बाद बाइक दोबारा खराब हो जाती है। जवाद का कहना है कि महंगाई के इस दौर में हुकूमती नाक़िस कारकर्दगी के बाइस मिलने वाला दुख जेब और सेहत दोनों पर भारी है। महीने का सर 5-6 हज़ार मेंटेनेंस लग जाता है सिर्फ बाइक के ऊपर। पेट्रोल तो हम अपनी जेब से लगा लेते हैं लेकिन मेंटेनेंस महीने का 4-5 हज़ार बढ़ जाता है सर। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जवाद ही की नहीं, शहर में बसने वाला हर शहरी टूटी सड़कों से नाला है। सीट खराब होती है, जम खराब होते हैं, जम की वजह से कमर में दर्द होते हैं। खुदा का बाइक गट मैनुअल में लग जाए तो 2,000-2,500 रुपए खर्चा आ जाता है उन पर। कोई गाड़ी खड्डे में लग जाती है तो झूला आउट हो जाता है, किसी के व्हील आउट हो जाते हैं। शहरियों का कहना है कि हर शहरी इन खराब सड़कों से मुतासिर होता है, लेकिन हुकूमत इस अहम मसले पर तवज्जो नहीं देती। वाद जैसे नौजवानों की अरबाब इख्तियार से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि शहर की सड़कों को सफर के लिए बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ फारूक समी, ARY न्यूज़ कराची। बारिशों से शहर डूबा नहीं तो सड़कों का मसला उठा दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दावा किया कि शहरी इंतजामिया ने बारिशों में बेहतरीन काम किया। मानसून गुजर जाए तो टूट फूट का शिकार सड़कों की मरम्मत भी कर दी जाएगी। उन्होंने हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज से बात की है, आप भी देखिए। मेयर कराची मेरे साथ मौजूद है। क्या हिकमत अमली तैयार की गई है KMC के मातहत जो 31 सड़कें जो मुतासिर हुई थी, इस हवाले से हम बात करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि जो सड़कें इस वक्त हमारी मेजर शाहराहें टूट फूट का शिकार हुई हैं या जहाँ पे इस तरह के गड्ढे पड़े हैं, बारिश के सीज़न के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह उसकी कार्पेटिंग का हम काम स्टार्ट कर देंगे। सड़कें जो कि रिसेंटली बनी थी और वहाँ पे कोई इस तरह का नुक्स आया है तो उसको भी चेक कराया जा रहा है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। माजी में बारिश के सीज़न में खबर ये चलती थी कि शहर डूब गया। अब की बार जब शहर डूबा नहीं तो लोगों ने तनकीद करने के लिए एक नया पॉइंट उठा लिया कि सड़कों का बुरा हाल है। बल्दिया उज़्मा कराची के अमले ने, तमाम जो मुताल्लिका इदारे थे, उन्होंने बड़ा मुतहरिक तरीके से काम किया। कमिटेड है हम लोग कि बारिश के सीज़न के बाद इंशाअल्लाह वो काम स्टार्ट कर दिया जाए। हालिया बारिश के दौरान सबसे बड़ा जो चैलेंज था शहर को डूबने से बचाना था। KMC तो अपना काम मुकम्मल कर रही है, लेकिन अब देखना ये है कि टाउन चेयरमैन किस तरह अपना काम मुकम्मल करते हैं। जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर दें आपको कि हमाद अजहर सदर पीटीआई पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। हमाद अजहर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा देने का ऐलान। उन्होंने लिखा, बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ना ही कोई डील की है। मेरी नक्ल हरकत पर बहुत सख्ती है, अडियाला अब जा नहीं सकता। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर ना मेरी राय ना रजामंदी शामिल थी। उनमें अक्सर फैसले ऐसे भी थे जिनमें मेरिट के बजाय लॉबिंग शामिल थी। बानी पीटीआई तक महदूद रसाई और यकतरफा मालूमात पहुंचाई गई। मैं आज से पंजाब की सदारत का चार्ज छोड़ रहा हूं। बानी पीटीआई का एक कारकुन था और रहूंगा। हमाद अजहर की जानिब से यह ऐलान किया गया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज के मुतासर होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर अफनानुल्लाह ने बताया, इंटरनेट सुस्त होने से कम अज कम 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है। इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट। सेनेटर पलविशा खान की जेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। इंटरनेट सोशल मीडिया एप्स डाउन होने पर सख्त नोटिस, 2 हफ्तों में नुकसानात की तफसीलात तलब। हुकूमती रुकन सेनेटर अफनानुल्लाह ने इंटरनेट सुस्त होने पर कम अज कम 500 मिलियन रुपए का नुकसान होने का दावा कर दिया। जो इंटरनेट का इशू है उसको हमने हाईलाइट किया है, तो पर्सनली इसको खुद भी देख रहा हूँ। जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनके सामने टेकअप किया है इसको, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये मसला जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो, क्योंकि फ्रीलांसर्स भी हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको इश्यूज आ रहे हैं। वजारत IT की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये नेटवर्क्स पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA ने दावा किया कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतल्लिक कोई शिकायत ही नहीं आई। वफाकी वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना था कि हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बट इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है, मैंने ISP से भी और PTA से खास तौर पे रिक्वेस्ट किया कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दें कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स के डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। कायमा कमेटी इजलास में फायरवॉल से मुतल्लिक एजेंडा मुलतवी कर दिया गया। फातिमा बतूल, AY न्यूज़, इस्लामाबाद। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने तलबा के लिए 100 लैपटॉप बतौर तोहफा देने का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस सिंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जहां भी गया पूरी कौम ने प्यार दिया। 100 लैपटॉप जो है वो बच्चों के लिए गिफ्ट है। ये गवर्नर साहब की मेहरबानी है, इन्होंने इतना मुझे प्यार दिया। पूरा पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्यार और मोहब्बत करी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर इस्लामाबाद से है। गैर मुल्की खातून से मुबैना ज्यादती के वाक़े का ड्रॉप सीन हो रहा है। जुल्करनैन हैदर से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, खातून तो गैर मुल्की नहीं है, लेकिन रेप की क्या तस्दीक हुई है मेडिकल रिपोर्ट्स में? ये अभी तक जो शुरू में इल्जाम लगाया था कि रेप हुआ है, उसकी भी तस्दीक नहीं हो सकी है। मजीद तहकीकात की जा रही है और ये खातून जो है वो पाकिस्तानी है, फरवा कियानी इसका नाम है, रावलपिंडी की रिहायशी है। इनके पास नए कॉप भी था बेल्जियम का, लेकिन जो कि 2019 में एक्सपायर हो चुका है और इसने अपने आप को गैर मुल्की जाहिर किया था। लेकिन अब नादरा के डाटा से ये चीज सामने आ चुकी है कि ये खातून पाकिस्तानी है और रावलपिंडी की रिहायशी है। बाकी कमेटी तशकील की जा चुकी है जो कि मजीद तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। अब तक के लिए इतना ही।